Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Virgo Ascendant and how the month of September 23 is going to pan out for the Virgo Ascendant people. So we will first start by looking at the Ascendant Lord. So for your Ascendant, the Ascendant Lord is Mercury and it is going to transition through the 12th house and it is going to remain here throughout the month of September. The same situation was also there in the month of August, and these 2 months, August and September, are going to be very challenging for you because you will feel lonely, isolated, and stressed out during these 2 months. And the best way to counter this negative energy is to learn meditation and spend your time in non government organizations, charitable institutions, and in hospitals, providing your services to all these places. This is the only way in which you will be able to counter your isolation and loneliness. Venus is the lord of your second house and it is transitioning through the 11th house in the full water sign of Cancer. Venus is extremely comfortable in the water signs, and as a result, the month of September is going to see a lot of cash flow for you. But since the ascendant lord is in the 12th, you will have a very strong probability of losing this cash by taking wrong decisions. So be careful about these. But cash will come for sure. You will also see people who are giving money to you, and these people would be your elder brother or sister, uncle and aunt. They will be able to help you financially in the month of September. If I talk about the favorable time frame for this cash flow, it is from 2nd to 5th of September and then again from 25th to 27th of September. So this total time frame of 7 days is the best time for you in the month of September. As far as the cash flow is concerned, money is definitely going to be pouring in this month for you. Mars is the lord of 8th house for you and it is going to be transitioning through the first house. So the 8th house lord in the first house is not a great placement house wise. This Mars is going to bring in a lot of anger in your mindset, and this is a very negative energy which you need to be cautious about. But if you look at the positive side, it will also give you a lot of energy physically. So the key is not to lose your cool and remain calm in this month. It is a very good placement for those people who are involved in the domain of research, technical consulting, even all those who are in astrology healing, those in the business of insurance and actuaries, they will find this placement to be very beneficial in their work. But for the rest of the people, it's not a very good placement. Jupiter and Rahu are going to combine in your 8th house, which would mean that in the month of September, you have to talk very carefully with your elders and you have to make sure that you are not insulting them. Jupiter is also going to turn retro from 4th of September, which would also mean that you will struggle as far as finding a parity with your elders is concerned. Rahu in the 8th house has the ability to give diseases below waist and it may also cause certain things like blood poisoning. So you need to be very careful of what you eat and you also need to protect yourself from all the ailments that are below your waist. Saturn is the lord of speculation for you and it is also the lord of service for you, and this is going to be in the 6th house. So 5th house lord in 6th anyways is not a great position speculation wise, but to compound the problems further, the opposition of Saturn and Sun is going to take place, and that too in the 6th and 12th houses. So all those people who are interested in the stock market, they should stay away from the market because this month is not going to turn out positive for you as far as benefits from speculation is concerned. I personally also see very few people of Virgo ascendant who are in the field of speculation because the Saturn's Capricorn sign falls in the 5th house and Saturn never gives anything easily. A lot of people enter in the stock market with the thinking that they will be able to earn a lot of money, but for you to succeed there you need to have a very good understanding of psychology of the market and a very detailed understanding of how exactly the price action works. So this is something which comes after a lot of effort, and most of the Virgo ascendant people, although are very good in calculations, they do not have the temperament to succeed in the market. Plus Saturn's positioning here also means that they will get gains from the market very late in their life, and that is why people step out, they don't try for that long.
As I said earlier, Saturn is also the Lord of Service for you, and it is passing through the sixth house, which is its own sign. So, sixth house Lord in sixth is a good position if you look at it job wise. And all those people who want to shine at the workplace, the time frame from 6th to 9th of September is going to be very favorable for them. Now, month of September anyways is difficult for you, but you have to watch out for your health for an extended duration. So time frame for 10th to 21st of September is not a very great time if you look at from the health perspective. So just remain cautious. You need to get yourself in a workout mode. Try to join a gym, go for a jogging. Some kind of a physical activity will help you in the month of September from falling ill. You have to utilize the negative energies of the 12th house in this month, and that, as I said earlier, can be through involving yourself in meditation, charity, NGOs, and by providing your service to the needy and who are in dire need of help. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि कन्या लग्न के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, पिछले महीने से यानी अगस्त से लेके सितंबर के अंत तक आपके लिए लग्नेश बुध 12वें भाव से भ्रमण करते रहेंगे। तो लग्नेश का 12वें भाव से निकलना हमेशा मुश्किल कहलाता है, क्योंकि यह व्यक्ति में अकेलापन लाता है और कई बार व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव ऊर्जा बनती है, इसको कैसे हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इस समय में ध्यान योग साधना में बिताना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपना समय किसी भी एनजीओ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में देते हैं या हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता है, और अगर आप डॉक्टर नर्स कंपाउंडर नहीं हैं तो आपको वहाँ पर कोई घुसने भी नहीं देगा सिवाय पेशेंट होने के। तो आप वैसे नॉर्मली अपनी सर्विसेज एनजीओज में या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दे ही सकते हैं। इसके अलावा बाकी ग्रहों की अगर आप स्थिति देखें तो शुक्र आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी हैं और वो लाभ स्थान से भ्रमण कर रहे हैं, वो भी पूर्ण जल राशि में यानी कि कर्क राशि में। तो ये शुक्र के लिए बहुत ही फेवरेबल स्थिति है। और सितंबर के महीने में अगर हम पैसे की बात करें तो आपके लिए बहुत तगड़ा धन योग बनता है। अब यह अलग बात है कि आपका लग्न स्वामी 12वें भाव से निकल रहा है, तो आपका आया हुआ धन आप अपनी ही हरकतों से गवा देंगे, लेकिन इसके लिए धन आना जरूरी है सबसे पहले। तो ये महीना पैसे की दृष्टि से बहुत अच्छा है, और आपको इस महीने में अपने बड़े भाई या बहन, आपके अंकल या आंटी से भी पैसों के मामले में काफ़ी मदद मिलेगी। और 2 से लेके 5 सितंबर तक का समय और फिर 25 से 27 सितंबर तक का समय, ये 7 दिन आपके लिए पैसे की आने की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। और आप उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं, आप उसको लुटा देते हैं अपने निर्णयों की वजह से, आप उसको संभाल के रखते हैं, ये आप पर ही निर्भर करता है। मंगल आपके लग्न स्थान में बैठे रहेंगे सितंबर के महीने में। मंगल आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना हाउस प्लेसमेंट की दृष्टि से अच्छा नहीं कहलाता है। मंगल प्रथम भाव में बैठ के व्यक्ति के दिमाग में बहुत सी नेगेटिव एनर्जी आता है, अग्रेशन बहुत आ जाता है, व्यक्ति में गुस्सा बहुत आता है, लड़ने झगड़ने पे व्यक्ति उतारू हो जाता है। यहाँ पर वैसे भी राशि बुध की है और मंगल और बुध की आपस में कट्टर शत्रुता है। तो सितंबर के महीने में आपको बिल्कुल कूल एंड काम रहने की जरूरत है और लोगों से झगड़ा आपको अवॉइड करना है कैसे भी करके। तो एक अच्छी बात यहाँ पे बैठा हुआ मंगल करता है कि व्यक्ति को शारीरिक तौर पे बड़ी एनर्जी प्रदान करता है। जिनके भी मंगल लग्न स्थान में होता है जन्म कुंडली में, उनको आप कभी भी सुस्त नहीं देखेंगे, जो कि शनि प्रधान लोग होते हैं। मंगल प्रधान लोग या लग्न में मंगल व्यक्ति को हमेशा ऊर्जावान बना के रखता है। शारीरिक दृष्टि से भी ऐसे व्यक्ति जिम विम में जाते रहते हैं, वजन उठाते हैं, उनमें बहुत स्फूर्ति होती है। तो ये पॉजिटिव बेनिफिट है मंगल का, जो आपको इस सितंबर के महीने में देगा। और जैसा मैंने कहा, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपके दिमाग में घुसती हैं, जो व्यक्ति में गुस्सा भरती हैं, वो आपको अवॉइड करनी है इस महीने में। ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि अष्टम भाव से ही जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी जो लोग रिसर्च में हैं या टेक्निकल कंसल्टेंट्स हैं, ज्योतिषी हैं, रेकी का काम करते हैं, हीलर्स जिन्हें हम बोलते हैं, या फिर जो इंश्योरेंस एक्चुरीज के बिजनेस में हैं, उनके लिए भी ये प्लेसमेंट करियर वाइज बहुत अच्छा है। जितने भी लोग अष्टम भाव से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये प्लेसमेंट बहुत लाभकारी साबित होगा। गुरु और राहु की युति आपके अष्टम भाव में बन रही है, तो ये प्लेसमेंट भी कुछ खास अच्छा नहीं है। आपको इस समय में अपने बड़े लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए।
लेकिन गुरु भी 4 सितंबर से वक्री हो रहा है, तो आपको अपने ज्येष्ठ लोगों के साथ घर में तारतम्य बिठाने में बहुत तकलीफ होगी और इसके लिए आपको और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। राहु अष्टम भाव में बैठ के व्यक्ति को हमेशा कमर के नीचे की बीमारियां देता है, यानी कि फिस्टूला, फिशर, पाइल्स, डिजीजेज ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स या फिर यूरिन रिलेटेड संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब इस तरह का राहु देता है। तो अपनी सेहत का आपको इस समय में ध्यान रखना है। अक्टूबर एंड तक आपको कमर के नीचे वाली बीमारियां होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि तब तक ही राहु यहाँ पे बैठ के अष्टम भाव में आपके बीमारियों वाले स्थान को एक्टिवेट करता रहेगा। आपके लग्न के लिए शनि पंचम भाव और छठवें भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव से आप शेयर बाजार को देखते हैं। सितंबर के महीने में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि एक तो पंचमेश छठवें में कॉम्बिनेशन के अलावा शनि और सूर्य की प्रतियुति हो रही है, वो भी छठवीं और 12वें एक्सिस में। 12वां भाव वैसे भी हानि का या लॉस का स्थान है, तो यहाँ पे स्पेक्यूलेशन से आप दूर रहिए। शेयर बाजार से इस महीने में अपने आप को रिटायर समझिए। वैसे भी आपके लग्न के बहुत से लोग शेयर बाजार में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आपके लग्न के लिए पंचम भाव में शनि की मकर राशि पड़ती है। शनि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देता, तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे टेंडेंसी से उतरते हैं कि हम शेयर बाजार में 2-3 साल में ही एकदम करोड़पति बन जाएंगे या बहुत पैसा कमाएंगे। उनको निराशा ही हाथ लगती है। और शनि का सिंबल यहाँ पर होने की वजह से कन्या लगने के लोगों को वैसे भी स्पेक्यूलेशन में पैसा बहुत जल्दी मिलता नहीं है, तो काफ़ी से लोग मैदान छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेक्यूलेशन से दूर रहना है। इसके अलावा शनि आपके लिए सर्विस के कारक हैं और शनि का प्लेसमेंट भी अभी छठवें भाव में है, तो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और आपके लिए कार्यस्थल पर चमकने के लिए 6 से 9 सितंबर का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपको अपने काम में इस समय में काफ़ी मजबूती मिलेगी। इस महीने में आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और बुध छठवें भाव को देखते रहेंगे। तो इस समय में आपको 10 से 21 सितंबर का समय ऐसा है जब आपको हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और ये पूरे महीने में आपका जो ध्यान होना चाहिए वो इस तरफ होगा कि आप 12वें भाव की नेगेटिव ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे अपना अकेलापन और स्ट्रेस में जो आप हैं उसको आप कैसे दूर करेंगे। तो ये खाली आपका मेडिटेशन से हो सकता है। किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जाके आप पैसे दीजिए दान में या अपनी सेवाएं दीजिए, तो ही ये इस तरह का प्लेसमेंट को आप नेगेट कर सकते हैं। तो आप इस महीने में भी लगे रहिए, आपकी स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। अगस्त का महीना पहले ही निकल चुका है और ये लग्नेश का 12वें भाव में जाना सारे ही लग्नों के लिए पखेड़ा खड़ा करता है। आपके लग्न के लिए तो 2 महीने में से 1 महीना निकल चुका है। सितंबर का महीना खाली आपको काटना है। एक बार बुध का प्लेसमेंट 12वें से हटके लग्न स्थान में आ जाए तो आपके लिए फिर से चीज़ें सुलटनी शुरू हो जाएंगी और राह बनती चली जाएगी। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।